Hello friends, welcome once again to your own channel Smita Classes. Today we will be dealing with the 8th chapter of English literature book of standard 5. The name of the book is Usher In and it is the 8th chapter. The name of the chapter is Krishna and Sudama. You know Krishna and Sudama, Lord Krishna and Sudama were friends. They were studying together and there is a story about them. Many of us know about it also. And today after reading, those of you who haven't heard about this story will get acquainted with it. We will start reading. Krishna and Sudama. When Lord Krishna and his brother Balram were young, they were sent to the school run by sage Sandipani. In the school, Lord Krishna made friends with a very poor boy named Sudama. They were always together, studied together, ate together and slept in the same room. When the studies were over, they had to part from each other. So they were very sad. Promising to meet again, they bade goodbye to each other. In the course of time, Krishna became the king of Dwarka and married Rukamani, the goddess of prosperity. Sudama went back to his village, married a simple village girl and led a poor life. His village was far away from Dwarika and he did not meet Krishna for many years. Sudama had many children. He was very poor and the family began to starve. Sudama's wife never complained, but when the children began to suffer, she was upset. भगवान कृष्ण जो है, लॉर्ड कृष्णा और उनके भाई बलराम, वो लोग जब छोटे थे तो उन्हें भेज दिया गया था गुरुकुल में पढ़ने के लिए. कौन से सेज वहाँ पे थे, कौन से साधु थे? साधु सांडीपानी थे. हाँ, उनके गुरुकुल में उन्हें पढ़ने भेज दिया गया था. उस स्कूल में वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ने एक बहुत ही गरीब लड़के से दोस्ती की. उस लड़के का नाम क्या था? सुदामा था. वो हमेशा साथ रहते थे, एक साथ हमेशा पढ़ते थे, खाते थे एक साथ और एक ही रूम में सोते थे. जब उन सब की पढ़ाई पूरी हो गई, गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो गई, उन लोग को एक दूसरे से अलग होना पड़ा. इसलिए वो बहुत ही सैड थे, उदास थे. वो लोग एक दूसरे को प्रॉमिस किए, यह वादा किए कि हम लोग फिर मिलेंगे. दे बेड गुड बाय टू ईच अदर. सब एक दूसरे को गुड बाय बोलकर चले गए. जैसे जैसे समय बीता, कृष्णा जो हैं वो द्वारिका के राजा बन गए और उन्होंने रुक्मणी से शादी की. रुक्मणी गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि की देवी है. मतलब रुक्मणी देवी जहाँ रहेंगी वहाँ पे कभी कुछ चीज़ की कमी नहीं होगी. धन दौलत सुख शांति वो सब बना रहेगा. तो रुक्मणी से उन्होंने शादी की, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी से, समृद्धि की देवी से. सुदामा वापस अपने गांव चले गए. एक सिंपल गांव की लड़की से उन्होंने शादी की और अपना जीवन बिताने लगे. बहुत ही गरीबी का उनका जीवन था. उनका जो गांव था वो द्वारिका से बहुत ज़्यादा दूर था और वो कई वर्षों तक कृष्ण से वो मिले नहीं, अपने दोस्त से. सुदामा के बहुत सारे बच्चे थे. वो बहुत ही गरीब था और फैमिली जो उनका स्टार्व करने लगा. मतलब फैमिली को खाने पीने की कमी रहने लगी. फैमिली ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था, उनके बच्चे और वो. सुदामा की वाइफ कभी कंप्लेन नहीं करती थी, पर जब बच्चों को बहुत तकलीफ होने लगी तब वह बहुत ही परेशान रहने लगी. One day there was no food in the house and the children were crying. Sudama's wife could not bear the sight. She approached Sudama. Why don't you go to Lord Krishna? Isn't Lord Krishna a friend of yours? Yes, replied Sudama. Go and meet him. He is the king of Dwarika. Inform him of our condition, begged the wife to Sudama. Sudama became very happy at the prospect of meeting his old friend Krishna. He did not like to go empty-handed. What could he take from their poor hut to the palace of Dwarika? Sudama remembered that Krishna in his childhood days liked puffed rice. So his wife borrowed some puffed rice from the neighborhood, tied it in a piece of cloth and gave it to him. एक दिन जब सुदामा के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, बच्चे रो रहे थे, तो सुदामा की बीवी यह दृश्य को देखकर और सह नहीं पाई. She could not bear the sight. और वो सुदामा के पास गए और बोली कि तुम लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते हो? वो तो तुम्हारे दोस्त है ना? तो वो बोले हाँ मेरे दोस्त है. बोले कि जाओ उनसे मिलो, वो द्वारिका के राजा हैं, उन्हें हमारे कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करो, उन्हें बताओ. इस तरह से सुदामा की पत्नी ने सुदामा से भीख मांगी. मतलब कि पूरा बहुत ही गिड़गिड़ा कर उनसे कहा. सुदामा बहुत खुश हो गए इस बात को लेकर कि अरे वाह, चांसेस है कि अपने दोस्त से वह मिल पाएंगे. पर वो खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे. एक गरीब के घर से वो क्या ले जाते? अपनी अपनी गरीब झोपड़ी से वह अपने दोस्त के लिए द्वारिका में क्या लेके आते? फिर सुदामा को याद आया कि बचपन के दिनों में भगवान कृष्ण को पफ्ड राइस मतलब चूड़ा जो होता है ना, तो वो चूड़ा खाना उनको अच्छा लगता था. तो इसीलिए उसकी बीवी ने क्या किया, उनकी पत्नी ने
पड़ोसी के घर से, नेबरहुड से, मतलब अपने पड़ोस से पफ्ड राइस किसी से मांग के ले आई, उसको एक कपड़े में बांध दिया और उनको दे दिया। It was a long way from Sudama's village to Dwarika. The whole day he walked. By evening he reached the city of Dwarika. He was very tired. Lord Krishna saw Sudama coming. He welcomed him with a warm embrace and washed his feet with his own hands. He introduced Sudama to his wife Rukmani as his beloved friend. Krishna and Sudama sat down to talk. Sudama was hesitant to give the puffed rice packed in the cloth. Krishna knew about this. He took the bundle and opened it. He was overjoyed seeing the puffed rice. Krishna thought of his beloved friend's love for him. ठीक है, तो सुदामा जो है चल पड़े अपने गांव से द्वारिका के लिए। वो बहुत ही दूर था, वो सारा दिन वह चलते रहे और जब शाम को हुआ तब वह द्वारिका पहुँचे। वो बहुत ही थक चुके थे। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि सुदामा आ रहे हैं तो वो जाके बहुत ही खुशी खुशी से उनके गले लगकर उनको स्वागत किए। विथ अ वार्म एम्ब्रेस ही वेलकम्ड हिम, और उनके पैर को उन्होंने खुद अपने हाथों से धोया है, पानी लाके उनके पैरों को उन्होंने धोया। और सुदामा को उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणी से इंट्रोड्यूस करवाया, रुक्मणी से मिलाया और कहा कि देखो ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। कृष्णा और सुदामा दोनों बैठ गए बातें करने के लिए। सुदामा को थोड़ा संकोच हो रहा था कि इतने बड़े राजा हैं, उनको मैं चूड़ा निकाल के पोटली से दूंगा, पर वह तो भगवान कृष्ण थे, उन्हें तो सारी बातें पता थी कि सुदामा के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, उन्होंने बंडल खुद ही सुदामा के हाथ से ले लिया और उसे खोल लिया, और जब उसमें देखे कि वो पफ्ड राइस है, चूड़ा है, तो वो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि उनके दोस्त उनके मित्र का कितना स्नेह है उनके प्रति, उनका मित्र उनको कितना प्यार करता है। कृष्णा ने 2 मुट्ठी वह चूड़ा खाया, पफ्ड राइस खाया, और जब वो तीसरा खाने वाले थे तो रुक्मणी ने उनके हाथ से ले लिया और कहा कि मुझे भी तो गांव का टेस्टी फूड को टेस्ट करने दीजिए। रुक्मणी ने उनके हाथ से लिया, बोला मुझे भी तो ये जो गांव से आया हुआ टेस्टी खाना है, स्वादिष्ट खाना है, मुझे भी वो खाना, मैं भी खाना चाहती हूँ। कृष्ण भगवान के on Krishna's instructions, a royal banquet was arranged in Sudama's honor. Delicious dishes were laid on the table. Rukmani herself served food to Sudama. They talked a lot about their childhood days and the incidents which happened then. However, Sudama was unable to speak anything about his poverty. Next morning, Sudama left for his village. Throughout the way, Sudama was thinking of the sweet memories of his meeting with Lord Krishna. On reaching his village, he thought of his poverty. He remembered he did not tell anything to Krishna about it. राजा कृष्ण ने जो है, भगवान कृष्ण ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, अपने सेवक लोग को यह आदेश दिया कि एक रॉयल बैंकेट अरेंज किया जाए, मतलब एक शाही दावत किया जाए। सुदामा आए हैं इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक शाही दावत किया जाए, और बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्टी खाने, तरह तरह के पकवान टेबल पे रखे गए। रुक्मणी ने खुद अपने हाथों से खाना परोसकर सुदामा को खिलाया। उसके बाद सुदामा और कृष्ण घंटों बैठ के अपने बचपन के दिनों के बारे में बातें करते रहे और उन घटनाओं के बारे में बातें करते रहे, उन इंसिडेंट्स के बारे में जो उन बचपन के दिनों में घटा था। ठीक है, पर सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कृष्ण को कुछ भी नहीं बोल पाए। ही वॉज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग अबाउट हिज प्रॉपर्टी। अगली सुबह जो है सुदामा अपने गांव के लिए चल पड़े। सारे रास्ते सुदामा यह सोचते रहे कि कृष्ण के साथ जो उनकी मीटिंग हुई वो कितनी अच्छी थी, उसका स्वीट मेमोरीज, हाँ, अच्छी अच्छी बातें वो याद करते रहे सारे रास्ते। कृष्ण से बातें करके कितना अच्छा लगा, ऐसे देखे कृष्ण ने मुझे ऐसे प्यार किया, ऐसे मेरे पैर धोए, ये सब वो सोचते सोचते अपने गांव पहुंच गए। जब वो अपने गांव पहुंचे तब वो अपनी गरीबी के बारे में सोचने लगे। उन्हें याद आया कि उन्होंने तो कृष्ण को कुछ कहा ही नहीं अपनी गरीबी के बारे में। Sudama was really confused and astonished when he reached near his house. There was now a magnificent palace at the place where stood his hut when he had left. His children came running out of the house to receive him. Sudama understood all. He thought, for 2 handfuls of puffed rice given with love, he showered me with riches. Sudama's wife asked him, what did you tell the Lord? So replied Sudama, believe me, I haven't told anything and I haven't asked for anything. Did he not inquire about us? Asked his wife. He did. I told him that you all were well, replied Sudama. Sudama and his wife understood that the Lord knows everything. If one reaches God with pure heart and love, he will shower his love and affection. ठीक है, सुदामा अपने गांव पहुंच गए और वो याद कर रहे थे कि उन्होंने कृष्ण को अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
पर गांव पहुंचने के बाद वो बहुत ही कंफ्यूज थे और एस्टॉनिश्ड थे, बहुत ही आश्चर्य में थे जब वो अपने घर के पास पहुंचे। उनके घर के पास जहाँ पहले एक झोपड़ी रहा करती थी, अब वहाँ एक मैग्निफिसेंट पैलेस था, एक शानदार महल था उनकी झोपड़ी की जगह। जब वो छोड़ के गए थे वहाँ झोपड़ी थी, आने के बाद वहाँ एक शानदार महल था। उसके बच्चे उस घर से बाहर दौड़ते हुए आए उससे मिलने के लिए। सुदामा सब समझ गए। उन्होंने सोचा कि 2 मुट्ठी पफ्ड राइस जो मैंने उन्हें प्यार से दिया, वो 2 मुट्ठी पफ्ड राइस जो खाए, उसके बदले में उन्होंने मुझे इतना सब कुछ, ये धन दौलत सब कुछ दे दिया। सुदामा की पत्नी ने उन्हें पूछा कि आपने क्या बोला भगवान को? सुदामा ने जवाब दिया, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी भी चीज़ के लिए नहीं मांगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, क्यों, वो हम लोगों के बारे में पूछे नहीं? तो सुदामा ने कहा, हाँ उन्होंने पूछा, मैंने उन्हें बताया कि तुम सब पूरे ठीक ठाक हो, अच्छे से हो। सुदामा और उनकी पत्नी समझ गए कि भगवान सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भगवान के पास जाता है अपने प्योर हार्ट लेके, है ना, पवित्र हृदय लेके जाता है, निश्चल हृदय लेके जाता है, पूरा प्यार लेके जाता है भगवान के पास, तो भगवान अपना लव और अफेक्शन उसको, हाँ, अपना स्नेह उसको ज़रूर देते हैं, अपना प्यार उसको ज़रूर देते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सुदामा और कृष्ण की कहानी बहुत ही अच्छी है। सुदामा के याद में आप जाएंगे द्वारिका ना, तो वहाँ पे एक मंदिर भी बनी हुई है, जहाँ पे वो कहते हैं कि इसी जगह पे सुदामा और कृष्ण एक दूसरे से मिले थे। वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, सुदामा मंदिर जिसको कहते हैं। I hope you like this chapter. Share this video with your friends and enjoy reading. Thank you.